Good afternoon, class. Good afternoon, sir. So, class, today we are going to install XAMPP. Okay. So, for installation, I am pasting the link in the chat window. You can go by clicking on this link. By clicking on that particular link, you will be redirect to a download page. Okay. So, I am also clicking that particular link, and you will reach this particular page. Okay. You will reach this particular page. Okay. So now we are on this page. From this page, what you have to do, you have to download the XM for Windows. If you are using a Windows system, for Linux, if you are using a Linux, for OS X, that is Mac OS, if you are using a Mac OS. Okay. So appropriately, you have to download. I am using a Windows system, so I have downloaded for Windows. I have already downloaded this software. Okay. By clicking on this link, the download will start. By clicking on the particular operating system link, the download will start, and you can save the file on your select location. I have kept this file. I have already downloaded this file, so I have kept this file on my desktop. Okay. So kindly download this, and then we'll work on the installation. Till the time what I am doing, I am uninstalling this particular software from my system. Okay. So I will guide you through the installation. Okay. So I'm uninstalling this software, so I can guide you with the installation. Okay. So I'm uninstalling. I have clicked on uninstall, and the uninstaller will start. Till the time what you have to do, you have to download that particular page. Okay. So those people have just joined the session. After my chat message, I am again pasting the chat message. So those who have joined right now will go to the chat window, and they will find a link. Okay. You have to click on this link, on that link, and you will be redirected to this particular page. Okay. It's a down. See, you will be redirected to this particular page, and on this page you have to click on Windows download, or Linux, or OS X, that is Mac OS. So as per your system, you have to download the file. Okay. So till the time your download is complete and my uninstallation is working, what we can do, I can wait for this uninstallation, as well as in between, what you can do in between, what you can do, you can download the file, and then once the download is complete on your side and the uninstallation process completed on my side, then we'll start the installation process. Okay.
So Yogesh, what I am doing right now, I am uninstalling because I have already installed this software. What I have posted in the chat window, I am again posting it. I want you to download this particular software by clicking on the link. Okay, ओके सर। and सर then सॉफ्टवेयर किस लिए एक बार सर ये बता दीजिए। ये सॉफ्टवेयर बेटा हम डीबी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है उसके लिए हमको MySQL चाहिए, और MySQL का हमको GUI चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम डायरेक्टली MySQL भी इंस्टॉल कर सकते थे। ओके, डायरेक्टली MySQL इंस्टॉल करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते थे, बट एज एन प्रैक्टिस वी आर यूजिंग XAMPP। ओके, ओके एज ए सर। प्रैक्टिस वी आर यूजिंग XAMPP कि XAMPP इंस्टॉल करके ही हम काम करते हैं। इससे पहले हम वैम सर्वर पे काम करते थे। ओके, so ओके सर। this time what we are doing, we are using XAMPP and we are downloading this particular software. You can see on the selected software on my screen, this is the installation. Okay, .exe file for installation. You have to download this file by clicking on the link. On this link you will find a file appropriate as per your operating system, Windows, Linux, Mac OS. Okay, so that depends on कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, आप उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। And we are going to use this file, we are going to use this installation for executing our Java database connectivity by using MySQL. And to get the MySQL, the easiest way I find is either install XAMPP or install WAMP. Okay, but the WAMP server right now nowadays gives you some DLL problems. Okay, with the latest operating system, the operating system do not contain the DLL which is required for this particular WAMP server. So that's why we are using XAMPP. Okay, ओके सर। so you have to download. I have already downloaded it, and I have saved this file on my desktop. Okay, so from desktop I am going to execute this file. I am going to execute this file. So I hope rest of the people class you have also downloaded. Some of you have completed the download. So can you give a message on the chat window with yes if the download is completed? देखो बेटा, if you are not configured with this software, if you are not configured with this software, you will be able to write the code, but वो code execute नहीं होगा। ठीक है, वो code execute नहीं होगा unless and until the database is there. So what you can do, you have to download it and install it. मैं अपना lecture इसमें इसलिए yes others. So I am in why I am giving my lecture on this की installation, because without this you are not been able to. मैं आपसे बोलता MySQL डाउनलोड कर लेना, तो कुछ बच्चे क्या करते MySQL डाउनलोड कर लेते MySQL इंस्टॉलर को यूज करके। तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती, because I cannot write code for everyone's configuration na, so that's why I ask you to configure the system जिस सॉफ्टवेयर से मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगर है। Okay, okay, and further on you can explore any database to connect with. Okay, RDBMS होना चाहिए, बस रिलेशनल डेटाबेस होना चाहिए। ओके, ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा था, सर आपने इस सॉफ्टवेयर को अपने इंटेलिजेंस से कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है? नहीं बेटा, इंटेलिजेंस से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है, इंटेलिजेंस से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स एन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर। JDBC API में हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमको डेटाबेस मिलेगा उसका URL पास कर देंगे और उस URL के थ्रू इसको एक्सेस कर लेंगे। ओके सर। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू कॉन्फ़िगर इट थ्रू माय इंटेलिजेंस। ओके। Okay, there's like I am not going to link this software with my IntelliJ. I am not going to link even the database with my IntelliJ. आप database को IntelliJ से link कर सकते हैं, but I am not going to do so because database is an individual thing, IntelliJ is an individual thing. अगर आपको notepad पे करना है तो वो जो connectivity आपके दिमाग में चलेगी कि IntelliJ से database connected था, ऐसा नहीं है। Okay, so you can use this software for getting a database जो कि MySQL है। Okay. ओके। सो गाइज आई विल वेट फॉर 5 more minutes कि भैया एटलीस्ट 10-20 लोगों का तो डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, देन विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बेहद सिंपल है। डबल क्लिक, नेक्स्ट 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 टिल द टाइम द सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल्ड।
हमें कोई भी मेन्यू, कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है, बस बाय डिफॉल्ट पे जो जा रहा है उस पे नेक्स्ट 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 करते हुए चले जाना है। सर लास्ट में सर नेक्स्ट होस्ट करके वगैरह को तो नहीं ये लिखना पड़ेगा क्रोम पे सर? चला गया। हाँ बेटा, लास्ट पे जब नेक्स्ट की तो वो क्रोम पे जा रहा है, क्योंकि वो बिटनामी का जो पेज है यस उस सर। पे और भी सॉफ्टवेयर है उसको। ठीक है, तो इंस्टॉल करूँ वो वाला भी? नहीं और कुछ भी नहीं करना है इंस्टॉल, वो तो पेज पे ले गया ना कि भैया जूमला आ सकता है, पीएचपी आ सकता, वो आ सकता है, यस। वर्डप्रेस आ सकता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको बंद कर दो वो पेज को। ओके। बेटा वार्निंग पढ़ दे, सॉरी, माइक ऑन करके। हाँ यूएससी ओके कर दे, ओके। जिन 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 सिस्टम्स पे एडमिन से ज्यादा अकाउंट्स हैं, गेस्ट अकाउंट है या एक आपका सेकेंडरी अकाउंट है, वहाँ यूएससी की प्रॉब्लम देता है, बट इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन दी दैट एग्जीक्यूशन। वो वाली स्टार्टिंग में सर आई थी वार्निंग। हाँ यूएससी की, तो यस वो सर। मेरे सिस्टम पे भी आ रही है, मैंने इग्नोर कर दिया है ना। ठीक। So guys, what I am doing, I am starting the steps of installation। जैसे मैंने बोला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। मेरे सिस्टम पे एक और प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक्सएम पहले से डला हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। व्हाट आई विल डू, ये सॉफ्टवेयर को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, उस फोल्डर को भी मैंने डिलीट कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डबल क्लिक ऑन दिस लिंक, या तो डबल क्लिक करो या रन एज एडमिन कर दो। ये वाली फाइल तो रन एज एडमिन ही होगी, देखिए सिंबल बना हुआ है एडमिन का। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रन एज, आई विल डबल क्लिक ऑन दिस एंड अब विंडोज पूछ रहा है मेरे से, यूजर अकाउंट कंट्रोल पूछ रहा है, ये देखो यूजर अकाउंट कंट्रोल पूछ रहा है, डू यू वांट टू, ये मैंने बोला यस। तो जैसे ही मैंने यस किया, ये मुझे वार्निंग देगा कि भैया आपके सिस्टम पे यूजर अकाउंट कंट्रोल है, कि कुछ यूजर को कोई चीज, ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। ओके सी, कुछ लोगों को ये वार्निंग आएगी, कुछ लोगों को ये वार्निंग आएगी। इंपॉर्टेंट, बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑन योर सिस्टम, सम फंक्शन ऑफ XAMPP आर पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड विथ यूएससी, प्लीज अवॉइड टू इंस्टॉल XAMPP। ओके, सी प्रोग्राम मिसिंग राइट परमिशन और डीएक्टिवेट यूएससी। ठीक है, तो मैं ओके कर दे रहा हूँ इस वार्निंग को, आई डू नॉट केयर अबाउट दिस वार्निंग। डन। नाउ दिस इज द लॉन्च विंडो ऑफ सेटअप, दिस इज द लॉन्च विंडो ऑफ सेटअप। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये देखिए पहला नेक्स्ट। आई डू नॉट वॉन्ट टू टच एनीथिंग, मुझे यहाँ से सिर्फ MySQL चाहिए है, अपाचे ऑटोमेटिकली आएगा। बट वॉट आई डू, आई नीड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP पर्ल मुझे चाहिए नहीं है, बट आई विल लीव इट डिफॉल्ट। ओके, आई नीड दिस PHP my admin, that's why I am keeping। so मैं कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ, what I am doing, I am using everything। I click on next, then it's asking me for an folder कि कहाँ इंस्टॉलेशन करना है। अब आपकी अपनी चॉइस होगी, मैं तो जो डिफॉल्ट लोकेशन है उसको ओके कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट। डन। इट्स आस्किंग कि जो आपका इंटरफेसेस खुलेंगे, कंट्रोल पैनल खुलेगा इसके इंस्टॉल होने के बाद, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो इंग्लिश ही बढ़िया है, दो ही लैंग्वेज दे रहा है वो। ठीक है, इंग्लिश इज बेटर, कि डच समझ में आएगी नहीं, तो इंग्लिश। नेक्स्ट। देन इट्स दिस पेज इज विल रीडायरेक्ट यू टू, दिस पेज विल रीडायरेक्ट यू, ये बोलेगा ड्रूपल, जूमला, वर्डप्रेस, ये भी डाउनलोड कर लो। तो हमें नहीं करना है, तो इसका चेक बॉक्स चाहो तो हटा देना, नहीं तो क्रोम खुलेगा उसको बंद कर देना। मैंने अनचेक कर दिया है, नेक्स्ट। Then setup is now ready to begin installation XAMPP on your computer. Next. So I will wait for the installation to complete। जब installation complete हो गई है, मुझे एक ऑप्शन देता है कि भैया कंट्रोल पैनल ओपन कर लो, है ना। तो कंट्रोल पैनल ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, लेकिन उसके आगे के प्रोसेस मैं समझाता हूँ आपको। सो टिल द टाइम द इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन, आई एम वेटिंग।
Good, others. I am waiting for my installation to complete. Okay.
So class, the installation is completed. Okay. Now, before finishing, what it's asking me, do you want to start the control panel? Sorry class. So what I can do, either I can uncheck this and on from the installation location I can start. But most of you have started this. अगर मैं इससे start करता हूँ तो problem क्या आती है ये देखते हैं. Okay, it will take a bit time, but we have to be patient to let the screen pop up. Okay, so I'll finish. Okay, चलिए time नहीं लिया. That's a great thing. सो गाइज दिस इज द थिंग इज अ कंट्रोल पैनल. ये हमको हर बार जब भी सिस्टम स्टार्ट करना है उससे पहले चाहिए. अब यहाँ पे आप देखिएगा ये कंट्रोल पैनल में, बिकॉज दिस कंट्रोल पैनल इज स्टार्टेड एज एन यूजर नॉट एज एन एडमिन. एडमिन से स्टार्ट होता तो आपको ये जो पोजीशन है, ये जो बॉक्सेस बने हैं, ये बॉक्सेस थोड़े से डिफरेंट दिखते, थोड़े से ये बॉक्सेस डिफरेंट दिखते. नाउ आई डू नॉट हैव द कंट्रोल ऑन दिस सर्विसेज. मुझे ये भी नहीं मालूम है कि ये सर्विस इंस्टॉल्ड है कि नहीं. ओके अगर ये इंस्टॉल्ड है तो यहाँ ग्रीन टिक आता है, नहीं तो रेड टिक आता है. ठीक है, ग्रीन टिक आता है, नहीं तो रेड टिक आता है. वन थिंग मुझे ये पता नहीं चल रहा है. द रेस्ट ऑफ द थिंग विल गो फाइन, द रेस्ट ऑफ द थिंग विल go fine, but I want to execute it always as admin. ओके मुझे कैसे करना है भैया, इसको एडमिन के जैसे ही एक्टिवेट करना है. ओके एडमिन के जैसे ही इसको एक्टिवेट करना है. सो व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, आई विल क्लोज दिस. ये मैंने क्लोज किया और ये देखिए यहाँ पे बॉटम पे एक पॉपअप है, उसको भी मैंने क्विट कर दिया. ओके चलिए ये सब एरर इट्स एन समथिंग कि यूजर से मैंने स्टार्ट किया था उसके कारण हो सकते हैं. आई एम इग्नोरिंग ऑल दी थिंग्स, एंड दिस विल नॉट कॉज एनी ट्रबल टू माय एग्जीक्यूशन. लेकिन सर मैंने कंट्रोल पैनल से वो टिक हटा दिया था. हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करना है बताता हूँ, बस मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड कर दे. ओके सर. ओके क्या मैं सुबह से 4 बार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर चुका हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है. ओके चलिए स्टिल. सो मैंने क्या इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज की थी, मैंने चूज की थी सी ड्राइव एक्सएम्प. तो मैं सी ड्राइव में गया और सी ड्राइव में ये एक्सएम्प फोल्डर में चला गया. अब एक्सएम्प फोल्डर में मुझे दिखेगा, देखिए start.exe, stop.exe, कंट्रोल. सो व्हाट आई हैव टू ओपन कंट्रोल पैनल. तो ये वाली की पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा. ओके इस सॉफ्टवेयर को मुझे, इस एप्लीकेशन को मुझे रन एज एडमिन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. ओके राइट क्लिक करके मुझे ये ऑप्शन मिलता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल को राइट क्लिक किया, मैंने कंट्रोल पैनल को राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. ओके ये मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया. अब ये यूएससी मुझसे मांग रहा है, डू यू वांट टू एग्जीक्यूट. यस आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सी नाउ सर्विसेज, रेड क्रॉस मीन सर्विस इंस्टॉल नहीं है. आई नीड अपाचे एंड माई एसक्यूएल. आई नीड 2 सर्विसेज ओनली. मेरे को 2 सर्विसेज चाहिए भैया. कौन कौन सी, एक तो चाहिए अपाचे और दूसरी चाहिए माई एसक्यूएल. तो मैं इस रेड क्रॉस पे टिक जब क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, है ना, सर्विस इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा. लेट्स सी ये रेड है, मैंने अपाचे पे टिक किया. इसने पूछा मुझसे कि भैया इंस्टॉल करना है अपाचे की सर्विस, मैंने बोला यस. और ये कंट्रोल मेरे पास एज एन यूजर नहीं था. ठीक अब मुझे MySQL की भी सर्विस चाहिए, मैंने बोला यस इसको भी इंस्टॉल कर दो. तो दोनों सर्विसेज क्या हो गई हैं, इंस्टॉल हो गई हैं. इंस्टॉल हो गई हैं. ओके नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टार्ट दी सर्विस. पहले मैं अपाचे की सर्विस स्टार्ट करूंगा. दी अपाचे सर्विस इज स्टार्टेड. नाउ आई विल स्टार्ट दी MySQL सर्विस. ओके मेरी MySQL सर्विस स्टार्ट हो गई है. नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे MySQL के लिए UI चाहिए. क्या चाहिए, यूजर इंटरफेस. ठीक है जहां मैं SQL लिख के डेटाबेस नहीं बनाऊंगा. ठीक है मैं SQL लिख के टेबल नहीं बनाऊंगा. ओके
मुझे टेबल चाहिए और डेटाबेस चाहिए। इस टेबल में इंसर्ट तो मैं कहाँ से करने वाला हूँ, जावा प्रोग्राम से। कहाँ से करने वाला हूँ, जावा से। लेकिन ये डेटाबेस और ये टेबल तो मुझे चाहिए है, ये डेटाबेस और ये टेबल तो मुझे चाहिए है। तो ये एडमिन जो है ये मुझे देगा यूआई। ठीक है, चलिए मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। एडमिन, सी दिस एडमिन इज गोइंग टू गिव मी द यूजर इंटरफेस। तो ये PHP माई एडमिन मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। PHP माई एडमिन ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पहले उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड पे आपको आपके सारे डेटाबेस दिख जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आपको आपके सारे डेटाबेस दिख जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक सर है, हेलो हाँ बेटा। सर, मेरे में एडमिन पर क्लिक नहीं हो रहा, मतलब वो अपाचे वगैरह में अगर मैं टिक करूं तो ग्रीन या रेड कुछ नहीं आ रहा है। रुक जा बेटा, तू कंट्रोल पैनल पे टिक अभी तो वो यहाँ पे तेरा ग्रे बॉक्स आ रहा होगा ना। यस सर, वो बॉक्स में टिक नहीं हो रहा कुछ। हाँ तो कट कर दे इसको, क्लोज कर दे, इसको क्लोज कर दे। ठीक है, ओके और सर। इंस्टॉलेशन लोकेशन पे जाके रन एज एडमिन करना है। रन एज, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ओके सर। ओके, चले भैया। सो ये तो मुझे क्या मिला बेटा, ये तो मुझे मिल गया राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मेरे डेटाबेसेस हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं, हम नया बनाएंगे। ये देखिए, ये डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस एक ऑप्शन दिया है। एसक्यूएल लिखना है तो एसक्यूएल है। ये स्टेटस, यूजर अकाउंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है, कोई डेटाबेस इंपोर्ट करना है। ये सेटिंग्स है, रेप्लिकेशन वेरिएबल्स, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, हम तो बनाएंगे डेटाबेस। एक चीज यहाँ देखिए, सेटिंग्स है आपके पास। ये क्या है, सेटिंग्स हैं। ओके, ये सेटिंग्स को आप यूज करके आप चेंजेस कर सकते हैं। जो भी सेटिंग्स में आपको चेंज करना है, दैट इज एन डिफरेंट थिंग, वो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। आइदर आई कैन गो टू डेटाबेस, या तो मैं डेटाबेस पे चले जाऊँ। आइदर आई कैन क्लिक ऑन दिस न्यू। ओके, ये देखिए न्यू डेटाबेस बनाना है तो न्यू पे क्लिक कर लूँ, सेम पेज पे आऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ डेमो। मैंने क्या नाम दिया डेटाबेस का, डेमो। और ये मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस की कमांड रन हो गई होगी एसक्यूएल पे। ठीक है, यूजर इंटरफेस है इसलिए। तो मैंने एक डेमो डेटाबेस बना लिया। बोल रहा है डेमो डेटाबेस में मुझे कोई टेबल बनाना है। मुझे कोई टेबल बनाना है, दो तरीके हैं। या तो यहाँ टेबल मिल गया मुझे, या तो मैं डेमो डेटाबेस पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ इस पे। ओके सॉरी, डेमो डेटाबेस पे क्लिक करूँ, ऐड। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट द टेबल। I can create the table by giving the table name। मैं इस टेबल का नाम दे रहा हूँ info। मैंने इस टेबल का नाम क्या दिया, info। अब ये मुझसे पूछ रहा है कितने कॉलम रहेंगे। राइट नाउ आई एम कीपिंग कॉलम्स टू 2, दो ही कॉलम रहेंगे इसमें। ओके, चलिए दो करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, गो करूंगा तो क्रिएट टेबल की कमांड एग्जीक्यूट होगी आदि। क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट हुआ। इसने मुझे बोला कि टेबल बनाने के लिए तुमको कॉलम का नाम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द कॉलम्स, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द कॉलम एंड द टाइप ऑफ वैल्यू दोस कॉलम इज गोइंग टू एक्सेस। यू कैन एडिशनली डिफाइन द लेंथ, यू कैन एडिशनली डिफाइन कि वो नल रहेगा कि नहीं रहेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, कोलेशन क्या रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। एट्रीब्यूट क्या रहेगा, इसको भी छोड़ देते हैं। क्या वैल्यू नल रह सकती है, तो इसको टिक करोगे तो नल हो जाएगी, टिक नहीं करोगे तो नल नहीं रहेगी। मतलब आपकी जो वैल्यूज है वो ब्लैंक नहीं रहेगी। देन ऑटो इंक्रीमेंटेड, यू वांट टू इंडेक्स की प्राइमरी की बनाना है तो वो सारे ऑप्शन भी आपके पास रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं भैया। कॉलम, पहले कॉलम का नाम आईडी, दूसरे कॉलम का नाम नेम। एक की वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की, दूसरे की वैल्यू होगी टेक्स्ट टाइप की। ओके, एक की वैल्यू इंटीजर, दूसरे की टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट में वो डिफॉल्ट लेंथ ले लें, इंटीजर में वो डिफॉल्ट लेंथ ले लें। ओके, अब ये क्रिएट टेबल की कमांड की एसक्यूएल देख लेते हैं। यहाँ नीचे देखिए ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू एसक्यूएल। ये देखिए प्रीव्यू एसक्यूएल एंड सेव। प्रीव्यू एसक्यूएल क्या देगा, इस कमांड को चलाने वाली क्वेरी दे देगा आपको। इस कमांड को चलाने वाली, ये काम करने वाली क्वेरी दे देगा। देखते हैं भैया, प्रीव्यू एसक्यूएल क्रिएट टेबल डेमो डॉट इन्फो। डेमो डेटाबेस में इन्फो टेबल क्रिएट करो। इंट आईडी नॉट नल, नेम टेक्स्ट नॉट नल, मतलब नाम, टाइप और एक फीचर उसका कि भैया वो नॉट नल वैल्यू है। ओके, नल वैल्यूज नहीं आएंगी। नेम, टाइप एंड देन अगेन नॉट नल। इंजन को अभी छोड़ दें, इसमें बहुत सारे इंजन होते हैं, उसमें से हम इनोडीबी ही जो डिफॉल्ट है उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने किया ओके, तो प्रीव्यू देख लिया हमने कि क्वेरी कैसी है। हम सेव कर देते हैं। हम सेव पे क्लिक करके अब क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। सी
तो भैया ये देखिए, ये मेरा टेबल स्ट्रक्चर दिखाने लगा, ये मेरा टेबल स्ट्रक्चर दिखाने लगा, आईडी नेम है ना, ये मेरा क्या दिखा रहा है, टेबल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में अगर मुझे डेटा डालना है, अगर मुझे इस टेबल में डेटा डालना है, सो व्हाट आई कैन यूज दिस टैब, इंसर्ट टैब। कौन सा टैब? इंसर्ट टैब। ओके, इंसर्ट टैब में क्यों डाल रहा हूँ डेटा? हो सकता है मुझे क्वेरी लिखना ना आता हो, तो मैं इंसर्ट टैब में गया, मैंने बोला कि भैया क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए आईडी की 1, और यहाँ क्या वैल्यू चाहिए मुझे, वैभव स्टोर कराना है मुझे यहाँ, ठीक है। जब मैं इसके गो पे करूंगा कि इंसर्ट हो जाए, ये नीचे दिख रहा है आपको, गो पे क्लिक करूंगा कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, सो ये मुझे एक एसक्यूएल दिखाएगा। तो मैं गो करता हूँ, ये देखिए इंसर्ट की क्वेरी दिखा दी उसने, मैंने इंसर्ट इनटू इन्फो आईडी और नेम के अगेंस्ट में ये वैल्यूज चली गई हैं, ये वैल्यूज चली गई हैं। अब मुझे अगर क्वेरी लिखते नहीं आती है, तो मैं इस इंसर्ट की क्वेरी को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, इंसर्ट की क्वेरी को कॉपी कर लूंगा, और इस क्वेरी को कहाँ पेस्ट कर दूंगा, जब जावा का मैं क्वेरी बिल्ड करूंगा जावा के अंदर, वहां पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो मेरी रिकॉर्ड एंटर हो गए। अब रिकॉर्ड एंटर हो गए तो मैं कहाँ से देख सकता हूँ, ब्राउज करके देख सकता हूँ मैं रिकॉर्ड्स को। ये देखिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, ब्राउज ने क्या किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, और ये देखिए इतनी चीजें हैं अभी बस मेरे मेरे सिस्टम में, ये 2 चीजें हैं। क्या क्या है? आईडी और नेम। आई होप दैट इज क्लियर, सभी लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे। यस सर। इतना काम हो गया भैया? यस सर। चले एक बार चैट विंडो पे जितने लोगों का ये कॉन्फ़िगर हो गया और PHP माई एडमिन खुल गया है, वो यस लिख के भेज दें। देन आई विल एंड दी सेशन, की मैं कल कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात नहीं करूंगा। थैंक यू ऋतिक। ओके, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने पोस्ट किया भैया। आदर्श मिश्रा, आदर्श त्रिवेदी, आशुतोष, आदित्य राज, थैंक यू। आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग अगेन। Okay, either you can view this recording for configuration. Thank you, Abhishek. Either you can view the recording for configuration, or you have to configure this using YouTube. Okay, but XM आपके पास configure होना चाहिए। इस पे फर्दर क्या काम करना है वो हम कल कोड लिखते वक्त देखेंगे भैया, ठीक। So class, that's all for this session. We'll see you in the next lecture where we'll going to perform JDBC coding. Okay, thank you class.